हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज सबसे पहले आप देखें आपके डिलीटेड सिलेबस में डिलीटेड पार्ट कौन सा है। ग्रामर में यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव, प्रेपोजिशंस। और फर्स्ट स्लाइड आपकी जो क्लास बुक टेक्स्ट बुक है क्लास 10 की, उसमें जितनी भी ग्रामर पीछे से दे रखी है थिंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ, वो सारी डिलीटेड है। ये आप यू कैन मार्क इट on your textbook. How to tell wild animals, trees and fog for any gorge. These are the poems which has been deleted for the session 2020. Now Mitchell the otter has also been deleted. Now next is Footprints Without Feet में ये तीन स्टोरीज हैं जो डिलीट हो गई हैं. Midnight Visitor, A Question of Trust, The Book That Saved the Earth. Now let us start with the poem, The Ball Poem. Ball poem written by John Berman. ओके, नाउ इस पोएट के नेम को हम थोड़ा सा लर्न कर लेंगे. वी हैव टू लर्न अलॉन्ग विद द स्पेलिंग. अ बॉय लूजेस अ बॉल. ही इज वेरी अपसेट. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is this boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. Now, इस इंट्रोडक्शन को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि दिस पोएम इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन. हाउ डज इट रिएक्ट व्हेन समथिंग हैज बीन लॉस्ट. एंड क्योंकि यहाँ एक छोटा सा बॉय है, इसका हमने एग्जाम्पल लिया है इस पोएट ने, तो सबसे फर्स्ट टाइम, बहुत पहले इनिशियल स्टेज में, जब बहुत फर्स्ट टाइम जब उसने कोई चीज़ लॉस करी है, लूज कर दी है, वो उस चीज़ को खो चुका है, तो वो अपसेट है. Now, why is this topic so important? Because ये समझाना चाहता है कि when something has been lost, what happens? क्या सिर्फ उस लॉस के लिए हम दुखी होते हैं, सिर्फ अपसेट होते हैं? बॉय इज अपसेट. क्या दूसरी चीज, दूसरी बॉल का लाना क्या डिफिकल्ट है? इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल? क्या मुश्किल है कि हम दूसरी बॉल खरीद के ना लें? बॉल इज सच अ स्मॉल थिंग. वी कैन बाय मेनी बॉल्स फॉर अ स्मॉल बॉय. बट जब उसको मालूम है कि मेरे पास बहुत सारी बॉल्स आ सकती हैं, तो वाई इज ही अपसेट? नाउ दिस टाइम वी रिक्वायर टू रीड द पोएम, and this poem make us clear why is it so. Now let us read it first. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? He saw it go, merrily bouncing. Now here you have some words which we require to highlight. Now, bouncing. I hope you know what is bouncing and what is merrily. Now, down the street and then merrily over, there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, starting down all his young days into the harbor where his ball went. He would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless. Now he senses first responsibility. In the world of possessions, see, in the world of possessions, some words you have to remember. When we are giving the answers, these words will be helpful. People will take balls, and balls will be lost always. Little boy. And no one buys a ball back. Money is external. Now, see, this is very important line which we have to use many times in our answers. He is learning. He is learning. See, this is very important. He is learning. Well behind his desperate eyes. The epistemology of laws. How to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. Okay, now this is our poem. Now let us start with the introduction. Now, what happened in the poem? A boy loses a ball and he is very upset.
Ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Then, because he knows, even if he knows that ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball, still he is upset. Now, why is he upset? Now, again, let us be very clear with the point. What is boy now who has lost his ball? The poet, क्या है, क्या कर रहा है वो लड़का जिसकी बॉल खो गई है, वो क्या कर रहा है? What is he to do? अब क्या करेगा? I saw it go. कौन कह, पोएट कह रहे हैं कि I saw it go. वो कह रहे नो, आई एम नाइस. पोएट ने खुद देखा कि वो बॉल चली गई नीचे. ठीक है. Merrily bouncing. Merrily means happily. Merrily means happily. Now, happily see, happily bouncing. नो, बॉल बाउंस करती है, उसमें हवा भराते हैं तो वो टप्पा खाती है, टप्पा खाते खाते, दैट इज बाउंसिंग. डाउन द स्ट्रीट. स्ट्रीट मतलब उस स्ट्रीट में, उस गली में नीचे चली गई. एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और बड़ी खुशी खुशी वो पानी में चली गई. एंड नो यूज टू से, कोई यूज नहीं है. वी कांट से देयर आर अदर बॉल्स. ओ फॉरगेट इट, forget whatever the ball is, let it go. No, we can't say, because why? Because the ball which has already gone cannot be back. जो हमारी बॉल खो चुकी है वापस नहीं आ सकती. So it's no use. जो चीज खो गई है वो नहीं आ सकती. We cannot get it back. An ultimate, see, ultimately what happened? Ultimately, he is in grief. Who is in grief? Who is in grief? Of course, the boy is in grief. तो एक अल्टीमेट ग्रीफ उसको फिक्स हो गया. ही इज वेरी सैड. दिस सेंटेंस मीन्स द बॉय इज वेरी सैड. व्हाई इज ही सैड? ही स्टैंड्स रिजिड. वो फिक्स हो गया वहां पे. ही इज ट्रेम्बलिंग. ही इज स्टेयरिंग डाउन. वो घूर रहा है, वो घबरा रहा है, वो नीचे घूर घूर के देख रहा है. बिकॉज कहाँ देख रहा है? जिस तरफ वो बॉल चली गई. All his young days into the harbor where his ball went. और वो छोटे छोटे उसके all his young days, छोटा बच्चा जहाँ खेलते हैं वहाँ पर वो क्या कर रहा है? वहाँ पर परेशान है वो. and he is looking around. वो देख रहा है वहाँ पे. just a moment. We fix this. Now all his ball went, and I would not intrude. See, who is I here? Now again, who is I here? When we are talking, who has written this poem? Poet. So poet is saying, I would not intrude on him. I will not. I am not going to interfere in anything. मैं नहीं बोलने वाला बीच में कुछ भी. A dime another ball is worthless. अब मैं ये बोलूँ कि कोई दूसरी बॉल आ जाएगी तो it's worthless. क्यों? Why it is worthless to say कि कोई बात नहीं बेटा, forget it, नई बॉल आ जाएगी? क्यों नहीं कहना? Because now he senses his first responsibility. Because this is the time, if I am going to intrude him, तो उसको ये वाला सेंस नहीं आ पाएगा, which is very important. तो वो क्या कर रहा है? What is he learning? He is learning something from the incident. He is learning something. What is he learning? He is learning the sense of responsibility. Whatever the things we have, we must have a responsibility for it. We have to pay something for what we lose. So जो चीज चली गई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी. ये सेंस उस बच्चे में आज आ रहा है. एंड दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉय टू अंडरस्टैंड. क्यों ही, वाई इज ही इज इन ग्रीफ. वो इस दुख में क्यों है? वाई इज इन ग्रीफ? बॉल तो बहुत सारी आ सकती है, बहुत सारी बॉलें आ सकती है. बॉल की क्या कॉस्ट होती है? कुछ भी नहीं. बट
एक छोटा सा बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम उस बच्चे को ये रियलाइज ना कराएं कि दिस बॉल वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, वो आगे भी चीजें खोएगा, ही विल बिकम केयरलेस, विल नॉट हैव। तो व्हाट इज दिस पोएम वांट्स टू टेल यू, it tells you the psychology of the human being, that every loss is giving something. What is it giving? It is giving the sense of responsibility. Every time we are losing, if whenever we are losing something, we are learning something. We are learning how to take care of things. We learn how to be responsible towards the thing we have. Then in the word of possession. Now see, why is it so? Why this a mere small, very the small ball which costs nothing is very important for the boy. How it can be the most important thing to make a boy learn something? Because in the world of possessions, in the world of, this is the world of materials. We all people, what we are, we people are surrounded by the materialistic things. We do have many things. We do have many things. बहुत सारी चीजें, हमारे मोबाइल है, हमारे पास पेंसिल है, रबड़ है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, जैसे हमारे घर में हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं. एंड पीपल विल टेक बॉल्स. नाउ दिस बॉल हियर, बॉल इज नॉट मियरली अ बॉल. वो सिर्फ एक बॉल की तरह नहीं बोल रहा उसको, वो इस बॉल में ही बता रहा है कि वी डू हैव मेनी थिंग्स. दिस इज सिग्निफाइंग द थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स वी हैव, मेनी थिंग्स वी डू हैव. तो ये बॉल सिर्फ वो बॉल नहीं है जो उस बच्चे के पास है, ये वो बॉल्स हैं, ये वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हमने इकट्ठी करी है अपने लिए. कॉपी है, बुक है. तो सो इफ आई हैव अ कॉपी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट. We can't say कि किसी ने ले ली, कहीं खो गई. No, you are responsible for it. You are supposed to take care of it. So here, poet through this poem want to make people realize that the world of possessions, where lots of materialistic things we do have, we are surrounded by many things. So then try to take care of it also. Try to take responsibility. You could not merely buy another things. No, whatever has been lost will not be back. दिस इज वॉट पोएट वांट्स टू से. जो चीज खो जाएगी, चाहे वो हमारी कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे वो हमारा प्रीशियस समय हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल इट. वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू टेक इट अवे. सो वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट. सो बॉस विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लॉस तो आपको हमेशा होगा, बिकॉज पीपल ऑलवेज ट्राई टू टेक थिंग्स फ्रॉम यू. So little boy, now through this little boy, poet is very smartly conveying the message to be responsible towards your things. Be responsible. No one buys a ball back. ऐसा नहीं है कि हर बार आपके लिए बॉल लाने के लिए वहां लोग खड़े होंगे. आज उस बच्चे को ये पोएट दे देगा बॉल, या उसके पेरेंट्स दे देंगे, या उससे जो भी उसके लवर्स हैं वो दे देंगे, या जो भी उसकी केयर करते हैं वो दे देंगे. बट ऑलवेज इट कैन नॉट हैपन. जैसे जैसे हम ग्रो होते रहेंगे, आगे बड़े होते रहेंगे, तो ऑलवेज देयर विल बी नो वन टू ब्रिंग द बॉल बैक. Moreover, you can buy another ball, but you cannot buy the things you have lost. So here, see, money is external. Now in some cases, जब वो यहाँ पर इस बॉल की बात कर रहा है, तो देर इज, इट्स ऑलवेज ऐसी चीजें हम लूज नहीं करते हैं जो चीज हम खरीद सकते हैं. कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है क्योंकि वो हमारी है. राइट. सो तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल. यू कैन नॉट फेथ इन मनी कि हर बार आप पैसे खर्च करोगे और आपकी को वो चीज, कोई दूसरी चीज, उसको उसकी जगह दूसरी बॉल आ जाएगी. जो चीज हमारी खो गई, आज एक साइकिल टूट गई, दूसरी साइकिल आ जाएगी. या ये जो साइकिल आपकी गलती से आपकी कॉपी खो गई है तो आपकी दूसरी कॉपी आ गई. नो, हमेशा ऐसा नहीं होता. कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि नॉट बाय, हम खरीद ही नहीं सकते उसको. हाउ इट बी बैक, वो कैसे आएंगे वापस. सो मनी इज एक्सटर्नल. ये तो बहुत बात की बात है, बाहर की चीजें. ही इज लर्निंग. अभी तो वो क्या कर रहा है, ही इज लर्निंग, द बॉय इज लर्निंग. क्या लर्न कर रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. नाउ हिज आइज इज वेरी डेस्परेट एंड क्यूरियस आइज है कि ये क्या हुआ.
मेरी तो बॉल खो गई, तो व्हाट इज ही लर्निंग हियर? बॉल के खो जाने से वो क्या लग रहा है? ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ व्हाट? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। कि जब हमारे पास इस पूरी लाइफ में, या हमारे पास जो भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो इट्स नॉट ऑलवेज फॉर एवर। ठीक है, तो दो चीज सिखा दी। पहली बात तो वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। एंड दूसरा उसने सिखाने की कोशिश कर दी कि मनी इज एक्सटर्नल, सारी चीजें पैसों से खरीद के आ जाए ऐसा जरूरी नहीं। सो व्हाट अनदर थिंग द पोएट वांट्स टू कन्वे, wants you to learn epistemology of loss. There are losses. Sometimes we we should realize that there are losses. होती हैं, बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो क्या करना है? क्या हमें हमेशा एक अल्टीमेट ग्रीफ में रहना है? डू यू थिंक वी हैव टू फिक्स आवरसेल्फ इन अल्टीमेट ग्रीफ? क्या हम इसी एक ग्रीफ में रहेंगे? नो। व्हाट वी विल डू? क्या करेंगे हम? जैसे इस बॉय को ये ही एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस ऑन इट। एक दुख उसके अंदर भर गया है, तो क्या वो उसी में ही दुख में ही रहेगा? क्या वो उससे बाहर नहीं आएगा? नो, नो, नॉट लाइक दैट। Again, the poet is here to give you the instruction, to give you direction. You learn how to stand up. कैसे सीखना है? जैसे ये बॉय सीख रहा है। इस बॉय की बॉल खो गई है, but he is there. He is there, standing rigid, along with his disparate eyes. He is looking towards the harbor where he used to play. And he is there to, now what is he learning? कि अब जब जो चीज का नुकसान हो गया है उससे हमें कैसे ओवरकम करना है, राइट? सो नोइंग what every man must one day know, and must know many days how to stand up. It takes a lot of time. It takes lot of time to learn how to stand up with the things you have lost in your life. But every man, हर किसी ने ये चीज लर्न करनी है एक दिन, कि हमने जो भी चीज हम अपनी लाइफ में हमारे पास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। स्टिल अगर वो खो जाती है तो हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उस लॉस से ओवरकम करके सीखें, अपने आप को डिप्रेस ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, और उस जिसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसकी हमने केयर करी, उसका हमने बहुत ध्यान दिया, लेकिन फिर भी वो चली गई। फिर भी अगर चली गई तो अपने आप को समझाना, अपने आप में उस चीज को मानना कि हाँ ये लॉस हो गया है और इससे मुझे अपने आप को बाहर निकालना, वो भी जरूरी चीज है। सो in the world of possession, when there are lots of things we do have materialistic things जो हम खरीद सकते हैं, we do have lots of people all around जिनको हम नहीं खरीद सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी टेक केयर करनी। लेकिन समटाइम्स एनिमल्स, कभी कभी हम एनिमल्स को ऐसे होते हैं कि हम पालते हैं लेकिन वो बहुत टेक केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी अपनी एक लाइफ है, चले जाते। तो क्या करेंगे हम? ग्रीफ में क्या शेक होकर के बैठ करेंगे? नहीं, वी हैव टू लर्न हाउ टू स्टैंड अप, right? So this is what the poet wants to say. Now, oh, there are other balls. Now, because this phrase is important to learn, so इसको एक बार हम देख लेंगे। The word suggests that lost is not important enough to worry about. Right? Oh, there are other birds. सिर्फ इतना ये सोच करके हमारा काम नहीं चलेगा। Loss is not important enough to worry about. ऐसा नहीं है कि सबका छोड़ लर्न भी तो करना है। कि हम लर्न नहीं करेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए वो कैसे लॉस हो गया। द शेकिंग ग्रीफ सैडनेस विद ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉडी। ऐसी किसी ग्रीफ में रहना कि जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट होती हो। जब बॉय वो अफेक्ट हो गया, ज्यादा इतना दुखी हो गया वो, उसको शेकिंग ग्रीफ है। हम क्या कहा? और रिजिड मीन्स स्टिफ। नाउ देयर आर ग्रोसरीज में देयर आर देखो सम इम्पोर्टेंट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अक्सर आपके पास जब हम पैसेज में देंगे तो अनसीन पैसेजेस जब पोएम के आते हैं तो ये इसको समझना, इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको लर्न कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट डज इट मीन टू लूज समथिंग। एपिस्टेमोलॉजी एक होती है, वो लॉस है,
ठीक है, तो ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि भाई अगर हम एक किसी भी चीज को हमने रखा है तो उसकी भी अपनी एक लाइफ है, तो वो भी एक समय के बाद उसने जाना है, तो यू हैव टू बी, यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, जो चीज आई है वो जाएगी। नाउ वी शुड डेस्परेट, हु इज डेस्परेट, कहा यहाँ कौन था डेस्परेट, डेस्परेट का मीनिंग पता होगा तो यू कैन से कौन है डेस्परेट, बॉय। उसकी आईज डेस्परेट क्यों है, क्योंकि द बॉल वॉज मेरीली बाउंसिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इट इज इन दी वाटर नाउ, चली गई है, खो गई है, पानी के अंदर खो गई। ओके, नाउ एपिस्टेमोलॉजी के बारे में अगर आपको कभी आ भी जाए पैसेज में तो आप इस वर्ड को लर्न करके जाएंगे, इट मीन्स नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। तो नॉलेज हमें यहाँ पे किस चीज, एपिस्टेमोलॉजी लॉस का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर आप एपिस्टेमोलॉजी को नॉलेज की तरह से लर्न करेंगे तो इट मीन्स टू टू हैव द नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ लॉस, कि एक लूज नेचर में, प्रकृति में सब कुछ है तो लॉस भी है। अब now come to the question answers. Now, why does the poet say, "I would not intrude on him"? Why doesn't he offer him money to buy another ball? क्यों नहीं कर रहा वो? Now you can give the answer yourself. क्यों नहीं करना चाहता है? Because poet wants boy to learn from the loss. जो उसने लॉस किया है, जो भी चीज उसने लूज करी है, उससे वो सीखे, और इसलिए वो उसको ये ऑफर नहीं करना चाह रहा कि वो क्यों नहीं देगा उसको बॉल, डेफिनेटली देगा, बट वो क्यों नहीं इंटरव्यू, बिकॉज अगर उसने उसको बॉल दे दिया, उसे लर्न करने का मौका नहीं दिया, ही विल नॉट लर्न द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पोएट वांट्स हिम टू लर्न द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? Now, staring down all his young days into the harbor where his bell went. Do you think the poet has had the ball for a long time? Is it linked to the memories? This you can write yourself. Yes, of course. Ball उसके पास बहुत समय से रही होगी, तभी वो उससे इतना प्यार करता है, राइट? वो क्यों उसको, वो कहता है कि मैं यंग डेज में इस हार्बर में इस बॉल के साथ खेलता था, ही इज मेमोराइजिंग कि हाउ वो बॉल के साथ कैसे इंजॉयमेंट करता था। तो यहाँ पर yes, I think the boy has had the ball for a long time. Is it linked to the memories? Yes, because he is memorizing the days when he used to play with the ball. Right? Now देखो, third question is very important. थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे। ये वाला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स? नाउ हियर व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू राइट द आंसर। This is the world of materials, things, many things. So in the world of possessions means the world where we do have lots of materials. सिंपल वर्ड में कहेंगे, और उसको इलेबोरेट करना है तो आप बता सकते हो कि हम फैसिलिटीज एंड लग्जरीज के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, यू कैन राइट इन दैट वे ऑल्सो। नहीं तो अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है पैसेज में आ गया तो इतना भी इनफ है आपका कि अगर आप लिखते हो कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स the world where we do have lots of materials all around, the facilities, the luxuries we all have collected for ourselves, for our facility. Okay, now do you think the boy had lost anything earlier? Now इस पोएम से हम समझ गए ना कि boy is a little boy and वो पहली बार ही उस चीज को हो रहा है। तो आप जब पोएम में पीछे जाएंगे तो you can find out the words also. जैसे आ गया कि merrily bouncing, राइट, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर कि इसकी फर्स्ट टाइम गई है, ये इन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड, तो याद ही मेमोराइज कर रहा है। तो ऐसा मेमोराइज क्यों कर रहा है? देखो, जब हमें जो पहली लाइन है हमारी, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अगर पहली बार खोया है तभी तो बेचारा इतना परेशान है। और एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, यहाँ भी वही सेम बात है कि ये क्यों है, ये इतना ऐसा उसका रिएक्शन क्यों आया है, इस तरीके के रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि पहली बार भी उस बेचारे की कोई चीज खोई, राइट? सो दीज आप इन वर्ड्स को वहां पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, लाइन्स आप पूरी पूरी लिख सकते हैं कि ये इसके ये हम कह सकते हैं कि ये पहली बार उसकी कोई चीज हुई है। Now, what does the poet say? The boy is learning from the loss of. क्या बोलेंगे हम इसमें? He is learning the sense of responsibility towards the thing he has. यहाँ पे क्या कर रहा है? The poet say the boy is learning from the loss of the ball. तो क्या बोलेंगे हम इसमें? The boy is learning the sense of responsibility. Okay. The sense of responsibility. क्या चीज लिखेंगे हम इसमें? यहाँ पे वो क्या कह रहा, द बॉय, यहाँ से शुरू करेंगे, द बॉय इज लर्निंग
यहाँ से हम इधर से हम लिखेंगे लर्निंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल अगर एक लाइन में हमने एक आंसर को लर्न करना है, यू कैन इलेबोरेट ऑल्सो, आगे हम उसको और इलेबोरेट भी कर सकते हैं, बट फॉर अभी से अभी अभी इसी वक्त लर्न करना है तो आप ये लर्न कर सकते हो, ही इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, राइट। इसलिए लिखा भी है कि अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो। अभी 2 नंबर के आंसर के लिए अगर आप इतना भी लिख दोगे दैट विल बी सफिशिएंट। Have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss. You got over loss का मतलब समझ लो कि how you overcome, how to stand up। जो पॉइंट ने बोला कि अब आपकी भी कोई अगर ऐसी प्यारी चीज़ खोई है या किसी चीज़ को आपने लॉस किया है, इवन इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। मान लीजिए आपको कोई पेट है और वो आपने पेट या बहुत केयर करते थे और वो मर गया है, तो उससे आपने फिर कैसे अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला, आपको कैसा फील हुआ, आप पोएम्स ले सकते हैं, वर्ड्स ले सकते हैं, आप ये वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय की जगह में आप अपना लिख सकते हो, आई वॉज इन अल्टीमेट शेकिंग एंड द अल्टीमेट ग्रीफ फिक्सेस ऑन मी। इस तरीके से आप यू कैन यूज द वर्ड्स और ऐसे करके अपना पैराग्राफ खुद बना सकते हैं, ठीक है। Now, I hope you understand this poem. This is a simple poem, but question answers जब आते हैं तो थोड़ा सा इसमें philosophical और psychological आ सकते हैं. So be careful. Thank you for today. Have a good day.